So, what is exactly a one-pager note? A one-pager note is an answer. It's an answer which is waiting for a question. So, you always build your notes from the answer side. How do you build micro themes? How we've built micro themes is basically PYQs यानी prelims and main में जो भी examination में question पूछे गए हैं. So, we've built those topics. उनसे जो multiple questions आए हैं या repeated themes है उसके basis पे prelims की themes बनती हैं. There are 15 GS subjects. 15 GS subjects के अंदर 288 की micro themes हैं जो मैं सबसे important बता रही हूँ यहाँ पे. 177 ऐसी schemes है जो बहुत main specific है 183 प्रीलिम्स के लिए. ठीक है, 183 प्रीलिम्स इसमें भी काफी ओवरलैप होता है. आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times, and that is Bruce Lee, and that is your 288. This is not exactly copied from a textbook. This is taken up notes and data facts in a proper block format बना के इस तरीके से किया. और क्या नहीं है, कोई भी full sentences नहीं है, only keyword, boxes, arrows, figures, key name. Everything on that page is something he could lift straight from an answer booklet. Hi everyone. So let's say your GS2 paper is tomorrow, okay, and GS3 is also tomorrow. So you have like GS1, GS2 together. अब कल है ये पेपर and आज आपके पास you only have 45 minutes for polity revision. Only 45 minutes. Let's say 50 because polity is more, but then you have all these subjects. What do you open? If an honest answer is a 600 pages book, or even for that matter, if the answer is like 120 pages for polity, then trust me, you're doomed. It's not going to work. You'll not be able to reach where you want to. It's not going to give you the results that you need. Because you have one day and आपको पूरा revision करना होगा. You need to have at least minimum, आपके maximum pages होने चाहिए 120. Or let's say 150, that is it, because depending upon the paper that you have tomorrow. But if you're opening 120 or 130 pages only for a subject polity, which is a part of a GS subject, then trust me, your preparation is somewhere wrong. Why I'm taking these sessions again and again for note making is because the fact is that if there are two type of people right now जो मेंस लिख रहे हैं 20 days में, उनके बारे में बात नहीं करते हैं, but there are two people. One part is like that is going to give exam for the first time in 27 and 28. The second is who have not cleared prelims. The reason why you have not cleared prelims, your note making structure is also one of the bigger reasons, because if your note making structure is not proper, you will not be able to revise on time. If you're not being able to revise on time the relevant information, then obviously the recall value in the exam, the elimination strategies won't work for you. So what is exactly a one-pager note? A one-pager note is an answer, all right? It's an answer which is waiting for a question. So you always build your notes from the answer side. Your notes is equal to an answer. Okay. What is exactly the question now? The question is here. I'll tell you what is the question. The question is basically that UPSC PYQ. Okay. That PYQ, that micro theme, that is your question. So you always answer, you always do notes from the sense of that, okay, this is a question and this is what I have to answer. Okay. Now this slide, it's very important for you to focus here. There are 5 ways. Basically, why your notes are also going to die and why it did not work in the past and it's not going to work. Because first of all, you're not doing this. You're not answering the question in your mains, in mains way or prelims way. And also that what you're doing is like you're making notes basically from a book. You're copying everything from a book. So yours is basically shortened version of a note of a standard book. So it's not going to work, of course, right? Then you have data, but you cannot locate that data. For example, let's say I ask you, give me a data related to women in the workforce. You have that data written somewhere, but you cannot locate it and you don't even remember it. You try to find it out in the, in the green forest of your notes. You cannot locate it at there and then. I'd say that you have to write, society paper tomorrow and you have a mock test. And if you do not have those notes where you can locate that data clearly, then your note structure is not working. You have basically borrowed a structure from a particular topper. All right, you've seen some kind of notes and you're trying to imitate it.
You've never ever tested those notes because you've not written any kind of answers, you've not given mocks to understand that what your note structure is, and you have doing it from multiple sources. If you're doing it from multiple sources also, then it has also become a problem. Okay, now let's go back to the fact that I say notes are your second brain. They're always your second brain. Why notes are your second brain? Is because just imagine yourself, and I want you to be there, that you're writing mains examination, let's say in 20 days, and you're completely exhausted. What happens then? If you're writing a mains examination mock, today's your, let's say we are having an open mock test on from 6th to 8th of August. Okay, for the people who are writing mains. Now, at this point of time, when you're revising GS 1, 2, 3, 4 and doing optionals and you're writing essays and you're writing mock test, are you expected to function in a way that you will remember everything? All right, you will not make mistakes, you'll make mistakes. So when you make mistakes, this is where you come. This is the place where you come for, understanding what is going wrong. This is the whole idea of building a really good note structure. And I want to say, so I hope that all of you have heard of Richard Feynman. He is one of the most famous people who've like revolutionized the idea of teaching and simplifying. And he says that they aren't a record of my thinking process, they are my thinking process. He always talked about notes as a thinking process. And this is why your notes are your second brain. So let's say अभी I have spoken about that कि हाँ आपको note making structure होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. This is all talk. Today I'm going to right now I'm going to show you through examples. एकदम live answer writing करके देखते हैं, live note making का structure बना के देते हैं, उसको brainstorm करते हैं, so that after this ये 40 minutes के बाद अब आपको फिर जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है. I will also show you one of my most favorite notes of one of the toppers and other toppers कि exactly उन्होंने कैसे बनाए, so that will actually prove what I'm talking about, the credibility that the CD brings when it comes to the note making structure, right? So the first part is this. Okay. So the two words that we always keep mixing up, that is, first is micro theme and second is dimension. Okay. So what you do is like micro theme or dimension को तुम लोग हमेशा confuse करते हो. Now let's understand what this is. So जो मैं ये दिखा रही हूँ यहाँ पे, this is prelims and this is mains. This is what we call micro themes. So syllabus is completely abstract, and what you have to do is that you have to work around these themes. Geography is a subject. ठीक है, syllabus में आपको सिर्फ geography of India and the world लिखा होगा. That is not how you study. You will not know. So how do you build micro themes? How we've built micro themes is basically PYQs यानी prelims and mains में जो भी examination में question पूछे गए हैं. So we've built those topics. उनसे जो multiple questions आए हैं या repeated themes है, उसके basis पे prelims की themes बनती हैं. For example, let's say Indian geography में rivers and lakes, oil and natural resources, forests, vegetation. ठीक है. यहाँ पे you'll also see if you focus here, these are actually divided. ये हमारे heat map में हम जो देते हैं, तो these are divided in the basis कि सबसे ज्यादा important micro themes कहाँ से आ रही हैं. These are the most important micro themes for prelims. और यहाँ पे again you will see, so for example, geomorphology is given here, right? Geomorphology is one of the most important micro theme for mains. Oil and natural resources, water management, primary sector, climatology, monsoon, ENSO, IOD, climate change से 3 questions आए, landslides, flora and fauna. तो ये आपकी themes हैं, ठीक. इन्हीं themes के अंदर then you have dimensions. अब जैसे for example, let's say अब यहाँ पे देखो. So river system is a theme. Okay, river system is a micro theme. Narmada and Rift Valley यहाँ पे एक डायमेंशन बनाती है. How do I know this? Because UPSC में questions ऐसे ही आते हैं. Tributaries again, let's say tributaries है. Okay, so tributaries अगर बात की जाए, तो that is your dimension under river system. So do you understand? River system is a theme. Types of rivers, उनके features और tributaries, ठीक है, उनके patterns are dimensions under this. So you have to study this from that dimension. Okay. वन माइक्रो थीम है, 2 डायमेंशन हो सकते हैं. जैसे कि रिवर सिस्टम है तो उसका एक डायमेंशन ये हो गया, वन रिवर ऑन दैट शीट.
फाइव नम्रता फ्लोज बेस्ट, ये सब आपके आंसर्स में होना चाहिए। ये कैसे समझ में आएगा? पीवाईक्यू की माइक्रो थीम को एनालाइज करके, प्लस आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तब डायमेंशन बनती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है यूपीएससी जो रिपीट करता है, दीज आर माइक्रो थीम्स। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो टेस्ट कैसे करोगे कि माइक्रो थीम समझ में आ रही है कि नहीं। कैन यू नेम इट इन 2 or 3 words? Has it been asked more than twice? Can you finish the sheet today? And 3 yeses and it is a micro theme. और उससे नोट्स बनानी है। तो सबसे पहले क्या, रिपीटेड है कि नहीं है, मल्टीपल डायमेंशंस बन रहे हैं कि नहीं, यूपीएससी मेंस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो थीम है। ठीक है, एनीवे यू डोंट हैव टू बिल्ड इट ऑन योर ओन, बिकॉज आप अगर लाइक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल फाइंड अ लिंक टू डाउनलोड माइक्रो थीम्स फॉर फ्री फ्रॉम द वेबसाइट, वहां पे जाके यू कैन डाउनलोड दोस माइक्रो थीम्स। दैट वर्क इज डन, वी हैव डन दैट वर्क फॉर यू फॉर फ्री। ओके, सो जस्ट डाउनलोड दोस माइक्रो थीम्स और माइक्रो थीम्स के बेसिस पे ही नोट्स बनाना चालू करो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डायमेंशंस, ये तो माइक्रो थीम पिक कर ली, आपको खुद से भी बनाना है, मैंने बता दिया कि कैसे डायमेंशन, आप कैसे माइक्रो थीम पिक करोगे, आप डायमेंशन कैसे समझोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस एंगल से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। फॉर लेट्स से साइक्लोन जो हो गया है क्वेश्चन, साइक्लोन्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आए मेंस में भी प्रीलिम्स में भी, लेकिन डायरेक्ट कभी नहीं पूछा है उन्होंने। उससे रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि फॉर्मेशन कैसे होता है, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में क्या है उसका ऑकरेंस। So these dimensions basically, micro themes will tell you what I have to open, what is my note heading, and dimensions is what is should be inside that note. Is it clear? So this is how you have to make notes. Up, like I keep on repeating, everybody at Civils Daily keep on repeating that syllabus is absolutely abstract. You only need micro themes for your preparation. Once you ingrain this, please इसको automatically robotically अपने दिमाग में ingrain करिए. This is how it's going to work. Apart from this, nothing is going to work. All right? Let's say there are 15 GS subjects. ठीक है, 15 GS subjects के अंदर 288 की माइक्रो थीम्स हैं, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ यहाँ पे। 177 ऐसी स्कीम्स है जो बहुत मेन स्पेसिफिक है, 183 प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है, 183 प्रीलिम्स रेडी, इसमें भी काफी ओवरलैप होता है, मेंस और प्रीलिम्स की थीम्स में ओवरलैप होता है। माइक्रो थीम्स कैसे बनी कि अगर रीसेंट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए उसमें 2 से ज्यादा आए हैं, डायमेंशंस को पूछा गया प्रीलिम्स एंड मेंस में, दैट बिकम्स अ माइक्रो थीम। आई फियर नॉट द मैन who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times, and that is Bruce Lee. And that is your 288. Okay. Why I have said it here, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. These 288, you have to do it again and again and again. You have to like fool proof होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको फुल प्रूफ नहीं करोगे एंड यू कीप ऑन रनिंग बिहाइंड रैंडम नोट्स, रैंडम टॉपिक्स, trying to figure it out in a different way, it's not going to work because time will fly. We are already like we're moving, we're in the August, we're end of July, August. So you have to focus on this from that perspective. पहले इसको परफेक्ट करो, इसके वन पेज नोट्स नहीं बना पा रहे हो, लोकेट नहीं करवा पा रहे हो, तो keep asking that question to yourself, that what am I making good structures, is my preparation structured? And by giving mocks also, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मॉक्स दे के देख लो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, अब आप कैसे माइन करोगे डायमेंशंस को, क्योंकि मैंने आपको बताया डायमेंशंस कैसे बनती हैं। माइनिंग डायमेंशंस फ्रॉम पीवाईक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब साइक्लोन का एग्जांपल लिया, सो साइक्लोन को कभी डायरेक्टली नहीं पूछा है। सो अब यूपीएससी ने क्या पूछा है, व्हाई द क्लस्टर ओवर बे ऑफ बंगाल, व्हाई द बे ऑफ बंगाल बीट्स अरेबियन सी, व्हाट कलर कोडेड वार्निंग मींस, हाउ साइक्लोन गेट देयर नेम्स, ये क्वेश्चन है। तब हमारा डायमेंशन कैसे फिगर आउट करना है, बिकॉज देखो क्वेश्चन तुम देख रहे हो बट डायमेंशन कैसे फिगर आउट करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी दिस फॉर्मेशन की कंडीशंस। ठीक है, वाई द क्लस्टर ओवर बे ऑफ बंगाल, यहां से आंसर होगा। ठीक है, रीजनल का कॉन्सेंट्रेशन, ये भी यहां से आंसर हो रहा है। ठीक है, रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं, क्योंकि अभी क्या अरेबियन सी में भी बहुत सारे साइक्लोन फॉर्मेशन हुए थे, तो क्या उस चीज को भी समझना जरूरी है कैसे, राइट। नोमेनक्लेचर कैसे होता है, कोस्टल वल्नरेबिलिटी एंड वार्निंग मशीनरी। वार्निंग मशीनरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हमको मेजर्स लिखने होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। हमेशा गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है, अगर आप अच्छे नोट्स देखोगे आपको वो चीज मिलेगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये वन शीट है।
यहाँ पे दिस इज, ये एक टॉपर की नोट्स है, साइक्लोन लिखा हुआ है, ठीक है। डेफिनेशन इज देयर, ओके। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन, ये देखो फैक्टर क्या है फॉर्मेशन की, ये पूरे दिए हुए हैं। हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, लो विंड शेयर होना चाहिए, रैपिड कूलिंग हाइट होना चाहिए। देन डायग्राम, दिस इज, ये मैंने डायग्राम्स के अपने सेशन में भी बताया था कि वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू यूज डायग्राम्स इन ज्योग्राफी स्पेसिफिकली। तो डायग्राम बनाया है, दिस विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क, दिस इज टॉपर्स एक्स फैक्टर बेसिकली। Why they're confined to South China Sea, Bay of Bengal and Gulf of Mexico? Why it is more in Bay of Bengal and Arabian Sea? ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि देखो यहाँ पे हमने ये चार चीजें जो डायमेंशंस के बारे में बात की थी, उसको पूरा का पूरा यहाँ पे दे हैव आंसर्ड। ओके, वन शीट, फोर क्वेश्चंस, आंसर्ड। डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन, डायग्राम है, व्हाई हियर नॉट देयर, और रीसेंट नेमिंग और रिस्पॉन्सेस क्या है वो भी दिया हुआ है। वो नेक्स्ट पेज में था, आई हैव नॉट एडेड दैट, बट वो भी दिया हुआ है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। अब हम, दिस इज आई हैव एक्सप्लेन, चलो अब लाइव बनाते हैं। लेट्स से आर्टिकल 21। सो आर्टिकल 21 इज वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट जो बहुत डायनामिक है प्लस स्टैटिक भी है। सो मेंस और प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड हाउ कैन वी डू दिस? अब कोई बुक नहीं ओपन करते हैं, ठीक है। यूपीएससी ने जो पूछा हुआ है उसके हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है। इसको डायमेंशंस में बनाते हैं। यूपीएससी ने क्या क्या पूछा है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। यूपीएससी ने ये डायमेंशंस पूछी हैं: स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स आफ्टर द प्राइवेसी जजमेंट, whether the right to life includes a right to die with dignity, judicial expansion of rights और overreach का criticism, ठीक है, clean environment, climate as a fundamental right, preventive detention और personal liberty का connection. These are the questions. अब इसमें कहीं भी डेफिनेशन ऐसे नहीं पूछी है आर्टिकल 21 की, तो अब कैसे नोट्स बनाते हैं? अब 6 ब्लॉक्स में आपकी, तो नोट को ब्लॉक्स में बनाना है। ऑलवेज रिपीटेड दैट इन वीडियोस कि आपकी नोट शुड लुक लाइक अ ब्लॉक। एक नोट के अंदर डायमेंशंस की ब्लॉक्स बनते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले टेक्स्ट, व्हाट इज आर्टिकल, और इवोल्यूशन कैसा हुआ वो एक होना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ राइट्स आर इंक्लूडेड हियर, कोर्ट्स ने इसको कैसे इंटरप्रेट किया है, यानी कि आपको केस लॉ के थ्रू इवोल्यूशन दिखाना है। क्या लिमिट्स और क्रिटिसिज्म है, डेटा और करंट फ्रंटियर क्या चल रहा है, और रेडी कंक्लूजन होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये 6 हेडिंग्स आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से हमने क्वेश्चंस देखे, स्कोप, ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जुडिशियल एक्सपेंशन, एनवायरमेंट, और क्या क्या टाइप की राइट्स अभी नई नई आ रही हैं और क्या हो रहा है। अब टेक्स्ट और इवोल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहले टेक्स्ट और इवोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? विल ऑब्वियसली डिफाइन इट, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब हम यहाँ पे इवोल्यूशन की बात करेंगे। सी दिस इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में देखो, सबसे पहले नैरो प्रोसीजर के बारे में सिर्फ बात की थी। मनेका गांधी में फेयर, जस्ट, रीजनेबल, गोल्डन ट्राइंगल ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 केम इनटू न्यूज। लाइफ विद डिग्निटी को बोला गया इंक्लूजन होगा आर्टिकल 21 में, ठीक है। देन रंजीत सिंह केस 2024, क्लाइमेट राइट फ्रॉम आर्टिकल 21 एंड 14, एंड राइट टू प्राइवेसी केम इन पुट्टास्वामी जजमेंट, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट, ओके। अब ये ब्लॉक को क्यों किया है? क्योंकि इवोल्यूशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। ये जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है ना, इसको टाइमलाइन में भी दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्स, देन वाई, देन जेड, इस टाइप से आप इसको इवोल्यूशन में भी दिखा सकते हो। यू कैन यूज दिस एज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज केसेस यहाँ पे जो दिए हुए हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी राइट्स हैं, कैटलॉग ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इन डायमेंशन से अलग अलग पूछा जा सकता है। कुछ चीजें सेम रहेंगी, पर अगर डायमेंशन अलग हो रही है तो आपको ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डिग्निटी, स्पीडी ट्रायल, लाइवलीहुड, एनवायरमेंट, एजुकेशन, प्राइवेसी, डाइवर्ट डिग्निटी। तो इनमें से आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है? जो करंट अफेयर पे हो। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो करंट अफेयर आप पढ़ोगे ही, ठीक है। समाचार मंथन के थ्रू पढ़ सकते हो, या फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी फॉलो कर रहे हो न्यूज़पेपर्स के थ्रू आता ही रहेगा। देखो, पुट्टास्वामी जजमेंट वाज इन न्यूज, राइट टू प्राइवेसी को लेके, तो यूपीएससी ने उस पर क्वेश्चन पूछा है। सो इट्स नॉट लाइक कि यू विल बी कंप्लीटली क्लूलेस। मीन्स में तो प्रिडिक्टेबिलिटी काफी होती है। सबसे ज्यादा टाइम किस पे लगाना है? यहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड जो है, ठीक है। सो एनवायरमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो आपको दो दो लाइंस यहाँ पे सब चीज के बारे में लिखनी है। ये एक ब्लॉक है, दीज आर द ब्लॉक्स, ओके।
कोर्ट ने कैसे किया, व्हाट इज द आउटकम, हाउ, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, बेसिकली हाउ द कोर्ट्स हैव डन इट इज ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज मल्टीपल वेज में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उस जो कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है या कोर्ट ने उसको किस तरीके से डिराइव किया है वो आप लिखोगे, ठीक है। द मेथड, नॉट जस्ट द आउटकम। जैसे यू आर रीडिंग द राइट्स इन rather than amending the text. Linking of article 14, 19 and 21, ये हमेशा क्लियर होना चाहिए और इसको आपको अपने आंसर्स में लिखना है और आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। डिग्निटी बिकम्स द डोरवे ऑफ फॉर अनरिटन राइट्स, डीपीएसपी पुल्ड इन एज सपोर्ट, आर्टिकल 48A एंड 51AG ऑफ द डीपीएसपी हैव बीन यूज्ड। इस तरह के कीवर्ड्स आपके नोट्स में होने चाहिए, ये सबसे ज्यादा यहाँ से मार्क्स आते हैं। तो जब हम एक्स फैक्टर की बात करते हैं ना, ऑल द टाइम वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट एक्स फैक्टर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर, राइट। अब लिमिट्स एंड क्रिटिसिज्म, अनदर, दिस इज द ब्लॉक 4। जुडिशियल ओवररीच के बारे में यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। पॉलिसीज जो है आर्टिकल 21 की ज्यादातर इंक्लूजन्स सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं। अभी फुटपाथ की राइट जो वॉक करने की है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, राइट टू वॉक ऑन अ फुटपाथ, राइट। तो वो भी कहाँ से आई है, इम्प्लिसिट कोर्ट ने की है, गवर्नमेंट ने तो ऐसा कुछ नहीं किया इस तरीके से, दैट इज ऑल्सो लाइक, सो जुडिशियल ओवररीच का यहाँ पे आता है। डिक्लेयर्ड नॉट डिलीवर्ड, ठीक है, ये राइट सिंस है 1986 से आर्टिकल 22। प्रिवेंटिव डिटेंशन इन द सेम, प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है इट इज अ फंडामेंटल राइट के अंदर एक पार्ट है ये। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अंडर ट्रायल्स कैपेसिटी, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ दिस इज वेरी डिफिकल्ट। सुप्रीम कोर्ट तो डिक्लेयर कर देता है बट इन्फोर्स कैसे किया जाए। डेटा क्या होगा, तो डेटा के लिए आप इस तरीके की चीजें लिखोगे, एनसीआरबी का प्रेजेंट डेटा होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 21 एंड राइट टू एजुकेशन, डीपीडीपी एक्ट, द लेजिस्लेटिव आंसर टू पुट्टस्वामी जजमेंट, रंजीत सिंह केस, यहाँ पे क्लाइमेट राइट आया है। तो जो मेजर ब्लॉक्स है, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट, प्राइवेसी, डिग्निटी, ठीक है, ये सारी चीजों से आपको क्या करना है, डेटा निकाल के उन ब्लॉक्स के आगे लिखना है जहां पे मैंने पहले बताया है, एंड दैट इज इट। रेडी कंक्लूजन्स होने चाहिए। रेडी कंक्लूजन्स कैसे होंगे, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, जैसे राइट टू प्राइवेसी के लिए आप लिख रहे हो नोट, तो रेडी कंक्लूजन्स कैसे बनाओगे, बना, बिकॉज सी वट एवर इट इज, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। यू कैन ट्वीक द वर्डिंग, बिकॉज इफ यू डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यू कैन ट्वीक द वर्डिंग, बट a lot of scholarly, quotes, judgments and all that will work as a ready conclusion and introduction. Start, probably just put a case article, आपका काम वहां से हो जाएगा, आप डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप गोल्डन ट्रायंगल ऑफ 14, 19, 21 कीप्स द प्रोसीजर ऑनेस्ट, ठीक है। सो दैट इज वाई देयर इज अ फेथ, ठीक है, इट्स गोइंग वेल, अगर आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पे द कोर्ट हैज कॉल्ड आर्टिकल 21 एज द हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आप इसको डीपीएसपी से भी कनेक्ट कर सकते हो और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से भी कनेक्ट कर सकते हो, इनमें से कोई भी आप पिकअप कर सकते हो। दीज थिंग्स, ये आपको एक्स फैक्टर नोट्स है हमारी, इसमें मिल जाएगा। दीज आर रेडली फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड, वहां से डाउनलोड करके यू विल गेट ऑल दिस कॉन्टेंट फ्रॉम देयर। ये आपको लक्ष्मीकांत से प्रोबेबली ना मिले, क्योंकि लक्ष्मीकांत में इस तरीके से एक आंसर स्ट्रक्चर में नोट्स नहीं दी होती, इट्स अ स्टैंडर्ड बुक, सो इट्स गुड फॉर प्रीलिम्स, बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग और मेकिंग नोट्स फॉर मेंस इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो आंसर राइटिंग का होता है वो वहां से नहीं आता, ठीक है। अब ये आपकी फिनिश्ड शीट है। अब यहाँ पे आपकी फिनिश्ड शीट जो होगी आंसर की, जो वन पेजर होगा, तो आपने क्या किया है इसमें, टेक्स्ट एंड इवोल्यूशन, बेयर टेक्स्ट, then you have A.K. Gopalan, Maneka, Kurali and Ranjit Singh. These cases are there. Text and evolution पे, then catalog में क्या होगा, types of rights, किस तरीके से rights और क्या interpret किया है, judicial method क्या है, ठीक है, golden triangle of 14, 19 and 21, criticism, overreach, not delivered, under trials, enforceability, data, ठीक है, डीपीडीपी एक्ट, आर्टिकल 21, एनसीआरबी का डेटा निकाल के, ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड डेटा निकाल के, कंक्लूजन्स, कनेक्टेड विद डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, हार्ट एंड सोल, इस टाइप से चीजें आप यूज कर सकते हो। क्रिएट रेडी कंक्लूजन्स, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चंस को इसी शीट से, ये जो ब्लॉक्स हैं ऊपर वाले, उससे आप कर सकते हो, जो मैंने बनाया है अभी। जुडिशियल एक्सपेंशन ऑफ द राइट टू लाइफ, क्रिटिकली एग्जामिन, जुडिशियल ओवररीच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ क्लाइमेट राइट्स, ये तीनों चीजें उससे निकल जाएगी। इसी टॉपर्स जब नोट्स बनाते हैं तो वो यूपीएससी की पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं मेंस और प्रीलिम्स के, उन्हीं के डायमेंशंस को कट करके दे मेक दीज नोट्स, देयर इज नथिंग डिफरेंट देयर, ओके। आपको भी वैसे ही करना है। इसको टाइम कितना लगेगा बनाने में, 30 minutes टू बिल्ड, 9 minutes टू रिवाइज, एंड दिस इज फॉर एवर।
You will never open a book again. A standard book is never to be supposed to be opened after once you've made this note. अगर आप 9 minutes में रिवाइज कर रहे हो इसको तो आपको ये बहुत दिमाग में रखना है कि डू आई हैव टू ओपन द बुक अगेन. सी करंट अफेयर्स का वैल्यूएशन इज कंप्लीटली डिफरेंट. अब मैं टॉपर की एक्चुअल अब हमने एक बिल्ड कर लिया. अब हम चलते हैं अनिमेश प्रधान की कॉपी पे. ठीक है, टू शो यू कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट. आई विल जूम दिस आउट फॉर यू. कोई पैराग्राफ नहीं है. डू यू सी दिस? देयर नो पैराग्राफ्स. दीज आर ब्लॉक्स. दिस इज अ ब्लॉक. ठीक है, दिस इज अ ब्लॉक रीजन इम्पैक्ट. ठीक है, यहाँ पे ये ब्लॉक्स हैं. पॉलिसी के चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या हैं, एंड सो एंड सो फोर्थ. दीज आर द ब्लॉक्स दैट यू नीड. यहाँ पे डेटा सेट है, यहाँ पे रीजंस दिया है, यहाँ पे इम्पैक्ट है, यहाँ पे पॉलिसी के चैलेंजेस हैं. दिस इज कंटिन्यूड हियर एंड दिस इज हाउ योर नोट शुड लुक लाइक. नॉट लाइक अ पैराग्राफ. और क्या है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली कॉपीड फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक. दिस इज टेकन अप नोट्स एंड डेटा फैक्ट्स इन अ प्रॉपर ब्लॉक फॉर्मेट बना के इस तरीके से दिया है. ठीक है, और क्या नहीं है, कोई भी फुल सेंटेंसेस नहीं है, ओनली कीवर्ड्स. ओनली कीवर्ड्स. ओके, boxes, arrows, figures, scheme name. ठीक है, everything on that page is something he could lift straight from an answer booklet. ठीक है, इस तरीके का आपको बनाना है, इमिटेशन नहीं करना है. अब इसका एक पेज डिकोड करते हैं. So for example, let's say groundwater depletion है, there is a definition here, then data है, causes दी हुई हैं कि क्या रीजंस हैं डिप्लीशन के, इम्पैक्ट है और मेजर्स दिए हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, पॉलिसी चैलेंजेस दिए हुए हैं, स्कीम्स दी हुई हैं. अब वही लाइन सारा काम करेगी. अब कैसे करेगी, आई विल टेल यू दिस. क्वेश्चन आया था, हमने इनसे पूछा था. सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज द रिपोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस डिस्कस द कंसर्न्स ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड डिमिनिशिंग रिचार्ज. ओके, and then again, similar question. India's water crisis has reached a critical point necessitating innovative solutions for effective mitigation. These are all questions that he had written in Civil's Daily का आंसर. See, the fact जो उसकी नोट्स में था वो यहाँ पे डायरेक्टली पुट इट अप. इंडिया का वाटर क्राइसिस का क्या रीजन है यहाँ पे लिख दिया. इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्या थे वो उसकी नोट से उठा के यहाँ पे लिख दिया. सो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ब्लॉक्स वही सेम रहेंगे ना. 18% फॉर डेटा, इम्पैक्ट लिखा, फिर मेजर्स लिखे, फिर मिशन का आकार दिया, एमजी नरेगा कन्वर्जेंस, सेम शीट है, ऑर्डर हैज चेंज. दैट इज इट. दिस इज व्हाट दिस पर्सन हैज डन. डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज हाउ यू हैव टू मेक वन पेजर. And at first it would seem that ma'am I would not probably be able to articulate कि मुझे इस डेटा को कैसे यूज करना है. For that you will write answers. You should be having good mentorship. You should be having good test series कि आप इन नोट स्ट्रक्चर्स को टेस्ट करो, रिवाइज करो periodically for both prelims and needs. Okay, without that I don't think so it's going to work. One page, two papers, no writing. यही एक पेज है देखो. This is his notes. ये जो ओरिजिनल नोट्स थी ये हैं. अब यहाँ पे देखो, यहीं से ये जो मेजर्स यहाँ पे लिखे हुए थे ये लिखे हुए हैं देखो. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जो मेजर्स थे वो यहाँ पे आ गए, उसकी नोट से ही है ये डायरेक्टली. जो उसने वन पेज नोट्स बनाया था वो एक आंसर में यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्टली लिखा है, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया है. यहाँ पे आई जस्ट शो यू द सेम सेम नोट्स. ये जल शक्ति मिनिस्ट्री वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे भी 18% वाला ही उन्होंने यूज किया था, इसमें भी उन्होंने वाटर क्राइसिस का क्वेश्चन है, सेम चीज. अब और नोट्स दिखाती हूँ. ब्लॉक्स क्या होते हैं, तो जैसे ये मेंटल हेल्थ है. सो टॉपिक क्या था, टॉपिक वाज हेल्थ. ठीक है, अब उसमें यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में भी लिखा हुआ है. ठीक है, उससे रिलेटेड पूरा डेटा है. यहाँ पे देखो कैंसर के बारे में लिखा है, एनसीडीएस क्या होता है, क्या स्कीम्स हैं, वो पूरा लिखा हुआ है. ठीक है, देन आयुष मिशन वाज देयर, उसके बारे में लिखा हुआ है. सो यू हैव क्रिएटेड दीज ब्लॉक्स, इस तरीके से ब्लॉक्स बनाए हुए हैं विथ डेटा एंड कीवर्ड्स. डिजिटल हेल्थ है, ये देखो डिजिटल हेल्थ है. आई विल शो यू दिस, जूम और करती हूँ मैं. डिजिटल हेल्थ है यहाँ पे, इवन ई संजीवनी. ठीक है, ई दंत सेवा, इंटरप्रेटेड डिसीज सर्वे प्रोग्राम, ई रक्त कोश. दिस इज द डेटा दैट ही हैज रिटन एज ब्लॉक्स, जो उसको अगर हेल्थ से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आया एंड दे आस्क्ड अबाउट डिजिटल हेल्थ या टेक्नोलॉजी का क्या यूज कर सकते हैं, दिस इज द डेटा दैट ही विल यूज. वन पेजर बना के पूरा इस तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि डायमेंशंस कुड प्रोबेबली चेंज. Right? Dimensions could probably change, but micro theme will remain the same.
दिस इज रिलेटेड टू लेट्स से सुसाइड, ये बना है यहाँ पे पूरा सुसाइड से रिलेटेड, क्योंकि न्यूज में था, ठीक है। वाई? क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड एंड रिक्रिमिनलाइजेशन एंड यूथेनेशिया से रिलेटेड इश्यूज पे बात चल रही थी। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, देखो डेटा पॉइंट्स है बहुत सारे, ओके। देन यहाँ पे विमेन से रिलेटेड क्या है, ठीक है, यंग एज से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड क्या है डायमेंशन, स्टेप्स क्या लिए गए हैं, ठीक है। देन लीगल क्या है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है, इससे रिलेटेड दिस इज हियर गिवन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, फॉर एग्जांपल, this was in current affairs, and if this becomes a dimension or probably even a micro theme, so then what it is, the data is there related to women, related to students, ठीक है। What are the steps that the government has taken, what is the judicial interpretation, what is the legal point of view, what should be done, what are the international practices that has been created in a ब्लॉक मैनर। सिमिलरली ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के लिए है, तो नैक्सलिज्म की जैसे डेफिनेशन है यहाँ पे, कीवर्ड, दिस इज अ डेफिनेशन, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेस, यहाँ पे देखो ये कॉजेस दी हुई हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, व्हाट आर द इश्यूज, एंड सो फोर्थ। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक नोट्स। क्या क्या चीजें हैं, दिस इज, अब इसका मैं चाहती हूँ कि ये जो ये पेज है ना, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। टेक अ गुड स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे पहले यू शुड हैव बॉक्स्ड हेडिंग्स, eyes can jump, this should be in your answer also, only point format, only point format, no paragraphs at all, this is a big no. A number on the page always, count, if your numbers are increasing it's a problem, okay, you have to have in mind that I have to concisely make it under maybe 50 pages, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। schemes and committees everywhere and full forms, try to write schemes and committees everywhere, especially in GS2, arrows connecting with each other, sentences से क्रॉस कर दिया, that reduces the word to the sentences। हर ब्लॉक में क्या होगा, what every block carries is this heading, ठीक है, the dimension 2 or 3 words, उनको बॉक्स कर दिया डायमेंशंस को, ठीक है। 4 to 7 lines proof, एक केस लॉ, एक कमिटी और कीवर्ड that you can reproduce, try to, and for a lot of topics I would say जैसे सोसाइटी GS2 वगैरह में try to add quotes also now because toppers are writing quotes, so thinkers के write good quotes, the lot of available CD के, इनफैक्ट एक्स फैक्टर नोट्स में आप देखोगे अगर, एंड अवेलेबल फ्रीली, उसको डाउनलोड करो, उसमें कोट्स लाइक एवरी टॉपिक में, सब में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी उसमें 4-5 कोट्स हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर यू विल फाइंड इट। योर माइंड इज फॉर हैविंग आइडियाज एंड नॉट होल्डिंग देम, सो दैट इज व्हाई this is what should hold your entire information. Your mind is not is for holding ideas, okay, not for this, यहाँ पे जाएगा सब कुछ। अब जैसे बात की हमने, आई टोल्ड यू दिस 5 blocks, these are the major 5 blocks। कोई भी माइक्रो थीम है उसके मेजर 5 blocks कैसे बनेंगे, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। रेडी इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपका, डेफिनेशन के थ्रू, आर्टिकल, डेटा पॉइंट या कोड, डेफिनेशन, आर्टिकल, डेटा पॉइंट और कोड ना। इसके लिए डेफिनेशन ज्योग्राफी और हिस्ट्री और टाइमलाइंस वगैरह, हिस्ट्री ज्योग्राफी में काफी अच्छे काम करती हैं। आर्टिकल्स फॉर GS2 पेपर, डेटा पॉइंट फॉर सोसाइटी सोशल जस्टिस, ठीक है, GS3, कोड्स अगेन फॉर एथिक्स एंड GS1 पेपर, यू कैन यूज दिस, ऑलराइट, इट वर्क्स, इट इज इजी, एंड योर थिंकिंग, जो आपका जो थिंकिंग पैरालिसिस है, डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस होता है, वो इससे खत्म हो जाएगा। फैक्चुअल स्पाइन क्या होता है, व्हाट इट इज, हाउ इट वर्क्स, what it is, how it works, types and provisions. Analysis कैसे करोगे? This is another block, this is another dimension. Issues, causes, significance. This is where the marks are separated. And evidence. What is the evidence of a particular thing? Committee, judgment, scheme, index or report. Ready conclusion, DPSP, target, thinker, way forward. Take a screenshot of this ready introduction. What are the facts? Analysis, issue, causes, significance, marks, separates are here, evidence, and ready conclusion. Okay? This is what you have to do. An example of the same I'll show you. Ready definition. This is poverty. See this. Poverty definition. Data. Quote. What are the forms of poverty? Health, skill, asset, gender. Okay?
These are the multiple forms. What are the reasons? एनालिसिस पार्ट में था ये, ठीक है. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, डीइंडस्ट्रियलाइजेशन, इम्पोवरिशमेंट ऑफ मासेस एंड हिस्टोरिकल रीजंस होते हैं. देन व्हाट इज द सोशल स्ट्रक्चर, ये एनालिटिकल पार्ट का है. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, एनवायरमेंट एंड टाइप्स. These are the blocks. जो this is justifying, this is a topper, this is Sri Lakshmi's notes. Okay. These are the government measures for this. गवर्नमेंट ने ये मेजर्स लिए हैं क्योंकि वो हमें लिखना है एविडेंशियली. व्हाट आर द कमिटीज? वाई के अलग लखड़ा वाला कमिटी है, सुरेश तेंदुलकर रंगाराजन कमिटी, ठीक है. व्हाट आर द अप्रोचेस दैट हैव बीन गिवन? कैपेबिलिटीज अप्रोच बाय अमर्त्य सेन. व्हाट इज पॉपुलेशन पॉवर्टी? दिस हैज बीन इन न्यूज बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन वाला इशू ऑलरेडी चल रहा है. पॉपुलेशन एज एन इफेक्ट, COVID-19 came, उसका impact and challenges for its eradication and a ready conclusion. See, a ready conclusion. No matter what kind of question you get, you can always use this block. This is it. And whatever happens in current affairs, you will add that as a value addition in a very short format, probably as a particular lines. But this is exactly what you need. Apart from this, you don't need anything. Okay. This is again, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लोकल बॉडीज का है. 73 एंड 74 इंट्रोडक्शन हो गया. लैक ऑफ फिजिकल एम्पावरमेंट, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, सोर्सेस क्या है इसके फाइनेंस के, ये यहाँ पे देखो दिया हुआ है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के क्या, लोकल बॉडीज के क्या सोर्सेज हैं. इस तरीके से यहाँ पे भी अगेन दिस इज गिवन, राइट. आई टोल्ड यू अबाउट एक्स फैक्टर्स, राइट. दीज आर द एक्स फैक्टर्स दैट इज रिलेटेड टू PRIs. सेम डेटा टोटल कितने हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये डेटा पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है. ये विमेन का एलिमेंट हो गया, क्या है ये, करंट अफेयर हो गया इसका. एंड व्हाट आर द मेजर इश्यूज? तो मेजर इश्यूज हैं तो यहाँ पे सेकंड ERC, कोई भी मेजर इशू है, आप कुछ भी पॉइंट लिख रहे हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, तो यू विल ऑलवेज हैव टू जस्टिफाई with an example. So we call this DAE framework. That is a dimension, argument and example framework. You have to follow it accordingly. यहाँ पे funds, functions and functionaries, ये major issues हैं और उसके अंदर ही multiple points ये X factors हैं. So you can make your notes from X factors also. You can download this from the website. Link to download is in the description. अब let's come back to another. अभी तो हमने एक general बात की है. Let's come back to the prelims. ठीक है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स के लिए ट्राई टू मेक नोट्स एंड टेबल्स स्पेसिफिकली जहां पे कंपैरिजन की होती है. तो दिस इज द नोट्स दैट यू सीइंग. दिस इज श्री लक्ष्मी नोट्स. अब ये सॉइल है, टाइप्स ऑफ सॉइल. अब आप इसको जब पढ़ोगे ना तो ऊपर नीचे आप कंपेयर भी करोगे. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू मेक टेबल्स. तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो माइक्रो थीम के डायमेंशंस उसने निकाले, एंड शी हैज मेड हर नोट्स फ्रॉम माइक्रो थीम्स ओनली, सिविल्स डेली की. ओरिजिन, नेचर, रिच किस चीज में है, किस चीज में लैक करता है, कलर क्या है, टाइप्स क्या है, लोकेशन, लोकेशन से क्वेश्चंस आए हैं, वेजिटेशन से क्वेश्चन आया और फीचर से क्वेश्चन आए हैं. एक पेज. दिस इज अ वन पेजर. इसको किस किस चीज में आप कर सकते हो, वेर यू कैन रेप्लीकेट दिस. इसको रिवर्स के लिए कर सकते हो, ठीक है. यू कैन रेप्लीकेट दिस विथ डैम्स, यू कैन रेप्लीकेट दिस विथ माउंटेन्स. इनफैक्ट इसको और किस चीज में कंपेरेटिवली कर सकते हो, पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनको अगर डिवाइड करके ऐसे कर सकते हो. जुडिशरी का ऐसा टेबल कंपैरेटिवली बना सकते हो वन पेजर, एंड दैट विल एक्ट एज, दैट इज ऑल यू नीड. उससे ज्यादा वन पेजर नहीं बनेगी. ज्योग्राफी में है, अगर आपके पास इस तरीके का नोट आप कॉनोटेशन कर रहे हो मैप्स में, दिस ऑल्सो बिकम्स योर one pager note. Maps are also super maps. Like we also have super maps. This is also one of the maps that somebody has made, one of our toppers. So let's see. ये नेशनल पार्क से रिलेटेड है, कहाँ पे कहाँ है सारी लोकेशन वो पूरी दी हुई है, ठीक है. जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ. अब सिंस आप खुद से इस चीज को बना रहे हो, so obviously the recall value for this will be completely different. You will be able to remember this better than anything else. If you find a particular ready-made map or even a topper's map, you will look at it, but you will take some time to figure it out, and that is not the idea. The idea is for you that I have made this and I just need to, okay, I'm forgetting something, I need to go back and just revise it in a very short manner.
Okay. So this is how you do it. Now, for example, let's say soil. So I've shown you alluvial, black, red, and yellow laterite, arid, saline, PT. Why you're making on origin, color, lax, wear, and crop is because UPSC has asked this. UPSC has asked on soil these questions. You notice red soil in parts of India. What causes that color? What is the color and the reason? Without the Himalayas, the Indo-Gangetic Plain would log alluvial soils. This is a question from UPSC prelims. Origin of the material, how they are formed. Tamil Nadu leads in cotton yarn. Black soil dominates the state. Location and crop. So, question, micro theme, dimension, and then one pager. This is how you move. This is a pattern. अब अगर ये क्वेश्चन आ रहा है और आपके पास इस तरीके का टेबल बना हुआ है, दिस और दिस इज योर टेबल, देन यू वुडंट नीड मोर. ठीक है, रेड सॉइल कहाँ पे क्या कैसा है यहाँ से आ जाएगा ना सारा कुछ. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वन पेज नोट्स रैंडमली नहीं बनानी है. पीवाईक्यू की थीम्स, माइक्रो थीम्स, देन डायमेंशन एनालिसिस, एंड देन यू विल मेक वन पेज नोट. ओके, एक एग्जाम्पल और दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे कि जो किस तरीके से कंसोलिडेटेड ग्रिड फैक्ट्स एंड डेटा किस तरीके से बनाए टेबल फॉर्मेट में. व्हाई आई वाज सजेस्टिंग टू मेक टेबल फॉर्मेट फॉर प्रीलिम्स इज दैट अ लॉट ऑफ, फॉर एग्जांपल पॉलिटी में दैट वर्क्स, इट विल वर्क इन पॉलिटी, राइट, इट विल वर्क इन ज्योग्राफी अ लॉट ऑफ टाइम्स, हिस्ट्री में यू कैन वर्क इट अराउंड. ओके, टेबल फॉर्मेट में अगर आप बनाओगे तो यूल बी एबल टू रीड. फॉर एग्जांपल, अब सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट के बीच में डिवीजन में आपको करना है. इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लस वैदिक सिविलाइजेशन से कंपैरिजन करना है, लेटर वैदिक से करना है, यू कैन डू दैट. प्लस अगर आपको किंगडम्स करना है तो फॉर एग्जांपल चोला, पल्लवास, पांड्यास ऐसे करके आप डिवाइड करके कर सकते हो. सो यू विल हैव दिस कंप्लीट कंपैरेटिव टेबल बिकॉज इट हेल्प्स. ठीक है, मौर्यन गुप्ता पीरियड को कर सकते हो. तो यू व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग, यूपीएससी के मेंस में काफी एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कंपैरिजंस आते हैं, तो दैट हेल्प्स. एंड वो नोट्स आपके इनफैक्ट प्रीलिम्स के मेंस में भी काम आ जाएंगे, राइट. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंपैरेटिव टेबल फॉर हिमालयास. सी दिस, कश्मीर हिमालयास आर गिवन हियर. ठीक है, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास, दार्जिलिंग एंड सिक्किम, अरुणाचल हिमालयास, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स. ठीक है, ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, व्हाट इट इज कंप्राइजिंग, व्हाट आर द फीचर्स, what are the glaciers that are found, what are the important passes, and other information that is related to that particular thing. For example, let's say Himachal and Uttarakhand, Valley of Flowers is situated here. Okay. With respect to Darjeeling and Sikkim, orchids are found here. There are absence of shivaliks here. So these are the very unique points that your note should contain. Okay. These are our X factor notes. These are our flash notes, by the way. सो एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था रिवर सिस्टम का, कि रिवर सिस्टम के लिए भी बना सकते हैं और यू कैन ऑलवेज मेक इट लाइक कंपैरेटिव. दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल. आप डायरेक्टली फ्लैश नोट से बना सकते हो. इनफैक्ट इफ यू यूज फ्लैश नोट्स प्रोबेबली फॉर प्रीलिम्स यू डोंट इवन हैव टू, you don't have to probably make one pager notes for the topics that you have in flash notes because it's anyway condensed in a manner that would provide you the most succinct information. So आप वहां से उसको use कर सकते हो, and they're like you can download them as well. So ladder कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक सोर्स है. सबसे पहली बात है, जैसे मैं तो फ्लैश नोट्स और एक्स फैक्टर की बात कर रही हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम ऑल्सो, आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट ऑल्सो, आई एम टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया की एनसीईआरटी. ठीक है, सो द सोर्स होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स कुड बी लाइक लक्ष्मीकांत, शंकर, एनसीईआरटी, एक्स फैक्टर्स, इट कुड बी एनीथिंग. You will highlight based on the dimensions, you will find the dimensions, and you will try to write it in your own words. That's the whole idea. Break into blocks. Okay, first of all you will write one dimension, one bounded box. It should be findable. Add what a books cannot. So यहाँ पे आप यूज करोगे टेक्नोलॉजी का probably. यहाँ पे गूगल का, गूगल use Claude to add extra dimension. For example, for particular thing you want to understand कि ARC कैसे करना है, ARC का इसमें कैसे, Google that. Okay, गवर्नेंस के पेपर में do it. शायद जो स्टैंडर्ड बुक्स में ना मिले, एक्स फैक्टर्स में ऑल्दो यू विल फाइंड इट, बट अगर कोई और स्टैंडर्ड बुक से कर रहे हो तो यू विल फाइंड अ बिट ऑफ डिफिकल्टी. सो दिस इज वेयर यू हैव टू कट टू द ट्रिगर्स. ठीक है,
दिस इज इट। आप नेक्स्ट लेयर यानी फिफ्थ लेयर पे जब जाओगे, जब आपका एक और रिविजन होगा, तो ओनली कीवर्ड्स विल रिमेन, सेंटेंसेस विल डाई, जो मैंने आपको अनिमेश की नोट्स में दिखाया था। सो टेक दिस, यू कैन टेक दिस एज अ स्क्रीनशॉट। फॉर एग्जाम्पल 300 पेजेस का आपका एक डॉक्यूमेंट है, आप पहले उसको हाईलाइट करोगे बेस्ड ऑन द डायमेंशंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर अपने वर्ड्स में उसको 40 पेजेस में लेके आओगे, लेट्स से, ठीक है। ब्लॉक्स बनाओगे, रिमिक्स करोगे, एंड देन ओनली कीवर्ड्स विल रिमेन। So a sign of that, your note making process is working, that your good notes will get shorter. Shorter means it will only have the most important keywords. It will have most important data, definition, committee, quotes, right? Uh, Schemes, challenges in keywords that you will directly reproduce in an answer, and your analysis will start getting better because what you'll be doing over time. And this is making notes is just not enough, because you'll be writing answers as well. If you have a good note structure, trust me, what happens is that start feeling confident to write answers and attempt test. I have seen this in my students time and again, that when they have a good note making structure, they really like, they appreciate the answer writing part. Okay, so when you do the test also, वहां से भी evaluation होगा. Why? Because what you'll find is that in the model answers that we provide, you'll find some good keywords, some good data that your notes might not have. So your notes will actually become shorter but more, improved, succinct, but dense. And because you'll be cutting a lot of fluff from it with time and again, understanding that what your answer needs, and you will start building those notes that are important. So let's say this is the last part of our session. Okay, after this, we will just summarize. So for prelims, all right. So prelims ke liye, take the screenshot of this. This is important for prelims. Okay, you have to use tables, not paragraph. Try to see if you can do it in a table format. Can you do it in the table format? For every topic, try to look into that perspective. Okay. Map every spatial theme. River, ranges, parks, tribes, Ramsar sites. एक ही outline में try करो. Map करनी. Map के through करो उसको. If you don't want to do it, download super maps from the Civils Daily website. It's freely available. वो सारा उसमें mapped है. Summarized page से start करो. Flash notes से build करो rather than zero. Flash notes are available. Separating feature क्या है कि कोई भी repetition नहीं होना चाहिए. अगर रेपिटेशन है नोट्स में तो प्रॉब्लम है, ठीक है। बिकॉज रेपिटेशन नहीं, एवरी पॉइंट एवरी ब्लॉक शुड हैव अ यूनिक इन्फॉर्मेशन एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 25 पेजेस टू 30 पेजेस फॉर अ सब्जेक्ट, दैट इज फॉर योर प्रीलिम्स। और हर चीज में करंट अफेयर की जो लाइन है वो होनी चाहिए, ऐड करते जाना है। स्पेशली ज्योग्राफी में ऐसी चीजें होंगी, पॉलिटी में आएंगी चीजें, दैट यू विल बी एडिंग। एंड इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट तो एनीवे वो तो कंप्लीटली डायनामिक है ही। उसमें इकोनॉमी में देयर इज स्टैटिक पार्ट, but most of it is coming from the dynamic part and application part, right? GS1 के लिए अगर कर रहे हो तो डायग्राम्स होने चाहिए ज्योग्राफी में, ठीक है। टाइमलाइन होनी चाहिए हिस्ट्री में। हर वन कोड पर थीम ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल बेंटिक ऑन द वीवर्स, नाउरोजी ऑन द ड्रेन। सो फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रही है तो कोट नाउरोजी, ठीक है। दिस इज वेयर यू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। सोसाइटी के पेपर में थिंकर को कोट करो, राइट, इट्स अवेलेबल। एक्स फैक्टर्स आप डाउनलोड करके निकाल सकते हो, थिंकर्स जो कोट्स हैं। और रेलेवेंस हमेशा रखना है। व्हाई इज इट बीइंग आस्क्ड? सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हेनेवर यू प्रिपेयरिंग इज अ व्हाई। एवरी थीम शुड आस्क दिस, you should ask this question, and answer आपकी notes में होना चाहिए। Why this theme? Why this topic? Why this dimension? And keyword rich होनी चाहिए, definitions में keyword richness होनी चाहिए। I've already showed you these notes। फिर भी मैं एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि थोड़ा फेमिलियर होगा आपको, वो दिखा देती हूँ थोड़ा जूम करके। इंट्रोडक्शन, ठीक है, दिस इज इंट्रोडक्शन। देन अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए अर्बन प्लानिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स एंड मेंस में, ठीक है। देन देयर इज अ डायग्राम, ये देखो यहाँ पे आईवीसी का कल्चर कैसा था, दिस इज अ नोट ब्लॉक। एंड यहाँ पे एक चीज लिखी है, स्मार्ट सिटीज मिशन। व्हाई? बिकॉज इट वाज इन न्यूज दैट अ लॉट ऑफ इट्स स्मार्ट सिटीज मिशन हैज टेकन इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। अभी इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, किस चीज के इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं? दिस इज टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश। अब यहाँ पे फैसेट्स क्या है इकोनॉमिक पॉलिसी के, उनके क्या फैसेट्स थे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या था, किस किस के ऊपर क्या था। एंड देन देयर इज लाइक अ डायग्राम हियर, ऑलराइट। जमींदार के ऊपर क्या था, आर्टिसंस के ऊपर क्या था, क्राफ्ट्समैन, इंडस्ट्री। देन दीज डायमेंशंस आर स्मॉलर हियर,
ये देखो, ठीक है, लीगल क्या, इन्वायरमेंट क्या क्या पॉलिसीज थी, किस तरीके की सी इकोनॉमिक पॉलिसीज उनकी क्या कॉलोनियल इकोनॉमी में था, दैट इज गिवन हियर. लेट्स कम बैक टू GS2. So articles, be very ready, be very mechanical about this. Articles or case laws, ठीक है. One judgment per theme, at least try one judgment. I would say just one judgment. केशवानंदा, वादफा, बोम्मई, मैनिका, anything. Just one judgment per theme, at least minimum होना चाहिए. Conclude, try to conclude on a DPSP, easier. Why I'm giving you, this is a beginner structure. Probably you will change it later on, but at least minimum इतना तो करो. I'm trying to basically kind of automate it for you. That's why I'm writing it. It could be different also. यहाँ पे कोड्स भी यूज कर सकते हो. रिसेंट कुछ अगर इनिशिएटिव्स लिए हैं, कोई इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. कंपैरिजन इन अ टेबल, ठीक है. पार्लियामेंट्री फॉर्म विद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, कंपैरिजन क्वेश्चन आते हैं. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम. आई हैव डिस्कस दैट इन माय GS2 एनालिसिस. तो यहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ उस चीज को. सेकेंड, ARC ऑलवेज ट्राई टू ऐड इन अ वे फॉरवर्ड एंड एट द women angle, even if it's not being asked. So comparison जैसे यहाँ पे दिया हुआ है. So this is how the notes look like. So जैसे parliamentary versus presidential मैंने बोला, so देखो यहाँ पे parliamentary government एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये यहाँ पे दिए हैं. इसके मेरिट्स क्या हैं एंड इसके मेरिट्स क्या हैं, यहाँ पे दिया हुआ. सो दिस इज लाइक अ टेबल फॉर्मेट में बनाया है. क्यों, अभी कैसे समझ में आएगा? हाउ वुड यू नो दैट यू हैव टू डू इट like this? If you have a micro theme document and you're reading the dimensions, you will understand कि this is a comparative dimension. वो micro theme में already, micro theme document में already दिया हुआ है, so you will understand this. It's not like a rocket science that you have to worry about. Okay. अभी एक्स फैक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. सेपरेशन ऑफ पावर्स या फेडरलिज्म पे दिया हुआ है कोई क्वेश्चन, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो क्या है. अब मैंने कहा था थिंकर्स और कोर्ट्स होने चाहिए, तो देखो ये थिंकर्स हैं यहाँ पे. प्रिंसिपल्स क्या है, ये एक ब्लॉक हो गया है, ठीक है. स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, इंडिया में है कि नहीं है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नहीं है. सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज व्हाट, दिस आंसर्स द व्हाई क्वेश्चन. व्हाई, what is the significance, why do you even need significance of power, your note should have that, and what are the challenges. So 5 से 6 ब्लॉक्स होने चाहिए और उसी के अंदर आपको बनाना है. ऑलरेडी I've given you those blocks, what you have to do. GS2 का या GS3 का, this is GS3. Again, GS3 is data rich. Keep that in mind. Do not crib about it. Do not procrastinate about it. Data on every sheet. ठीक है. कुछ भी बिना डेटा के लिए नहीं जाएगा. DAE फ्रेमवर्क होता है डायमेंशन, आर्ग्यूमेंट एंड एग्जाम्पल, और GS3 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशंस आपकी इंस्टीट्यूशन से आनी चाहिए, ठीक है. UNCCD ने क्या बोला लैंड डिग्रेडेशन के लिए, ये कौन बताएगा कहाँ किसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है, यहाँ से आएगी. WTO क्या बोल रहा है, WHO क्या बोल रहा है, डेफिनेशन सारी यहाँ से आएंगी. 3-4 इंस्टीट्यूशन है. ILO है, वो क्या बोल रहा है, वो आपको यहाँ से आएगा, ठीक है. अब गवर्नमेंट सोर्सेज ही यूज करनी है, तो उसके लिए PIB, नीति आयोग, इकोनॉमिक सर्वे एंड मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स. तो 4 चूज कर लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल नीति आयोग चूज कर लो, PIB 3 करो, इकोनॉमिक सर्वे, PIB, नीति आयोग, ठीक है. एंड एनवायरमेंट के लिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो बोल रहा है उसके हिसाब से आप बनाओगे, ठीक है. प्लस UIUCN से कोई रिपोर्ट्स हैं, यू कैन यूज दैट. 6 or 7 पॉइंट्स, देन स्टॉप, और 1 केस स्टडी पर थीम, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है. दीज आर द नोट्स फॉर दैट. देन यू हैव GS4. GS4 का ब्लूप्रिंट कैसा होगा, एक कीवर्ड का बैंक बनाना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब GS4 पढ़ रहे हो उसके साथ साथ यू हैव टू मेक अ 1 पेजर जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स होंगे, एंड दैट यू विल कीप गोइंग बैक एंड फोर्थ. The thing is that that page is going to be with you throughout your GS4. These are the keywords that are applicable in particular questions, because interlinked questions आएंगे, ठीक है. एटीट्यूड को एप्टीट्यूड के साथ, वैल्यूज रिलेटेड, मॉरल्स, एथिक्स, हर जगह आपके वो आनी चाहिए, ठीक है. पब्लिक सर्विस वैल्यूज में भी पर्टिकुलर वो कीवर्ड्स हर जगह यूज करने हैं, इसलिए इसके लिए अलग से आपको बनाना है. एंड प्लस यू हैव टू मैप वैल्यूज टू द एग्जाम्पल्स, जैसे कंपैशन, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, एंड यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल सबके सामने होना चाहिए. थिंकर्स, इंडियन एंड वेस्टर्न, डिलेमा की एक लिस्ट होनी चाहिए, 5 रेडी पेयर्स, कंक्लूजन का बैंक, एंड आपके खुद के एग्जाम्पल्स. दिस इज नॉन निगोशिएबल, यू हैव टू डू दिस. अब मैं कैसे बोल रहा हूँ, कीवर्ड्स क्या हैं, व्हाट आर एथिकल कीवर्ड्स, ये टॉपर की नोट्स हैं. दीज आर एथिकल कीवर्ड्स. सी हियर, पॉजिटिव, नेगेटिव, समनम बोनम,
गोल्डन मीन क्या होता है, कर्म योगी, मॉरल इंटेलेक्चुअलिज्म, ठीक है, डिओन्टोलॉजी, लोक संग्रह, प्लेटोस फिलोसोफर कर किंग, अंतर आत्मा, कोरंस ऑफ मानस वच कर्मान, नेगेटिव क्या है, नोअर डूअर स्प्लिट, ओके, स्लिपरी स्लोप, moral desert, ethical egoism. These are the keywords that you will keep building throughout your preparation. वो जब भी करोगे. अभी ready conclusions बनाए हैं ये भी टॉपर ने. These are the ready conclusions. ये देखो यहाँ पे. Means do not justify the end. Okay. Truth is rarely easy and seldom guilt-free, but gradually it is the most rewarding. अब ये रिलेटेड टू कीवर्ड्स हैं, जो माइक्रो थीम से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो बना के रखें. वेस्टर्न फिलोसफी में कैसे बनाए, तो मैंने वो अभी मेंशन, राइट. सो यू मेंशन कि देखो इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी के लिए बनाना है, सो दिस इज हाउ मच यू नीड टू राइट. फॉर एग्जाम्पल सोक्रेटिस है यहाँ पे, प्लेटो, ठीक है, मकाइवेली, स्टोइसिज्म क्या होता है, एरिस्टोटल की थीम्स क्या है, सोफिस्टिस, ठीक है, सोफिस्ट क्या बोलते हैं. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक नोट्स. तो अब ये मैंने GS4 का भी दिखा दिया, कीवर्ड्स, कंक्लूजन्स, फिलोसफी, इस तरीके से बनाना है. अब ये वर्क कल्चर पे बनाया है, ये ब्लॉक्स जो है ये पूरे वर्क कल्चर पे है. पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके का वर्क कल्चर होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में वर्क कल्चर कहना कैसा होना चाहिए, गुड वर्क कल्चर की थीम्स कैसी होती हैं, ठीक है, पुअर वर्क कल्चर के क्या एग्जांपल्स होते हैं, रीजंस क्या है पुअर वर्क कल्चर के, क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है वर्क कल्चर के बारे में, सिग्निफिकेंस भी होना चाहिए, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, एंड रेडी इंट्रोडक्शन. सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट, ठीक है. सिमिलरली परसुएशन हो गया यहाँ पे, ठीक है. दिस इज एप्टीट्यूड, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे दिया है. दीज अनदर ब्लॉक, एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड. ये कहाँ से आ रहा है, हाउ डू यू मेक दीज ब्लॉक्स, कमिंग बैक अगेन, माइक्रो थीम के डायमेंशन से आ रहा है, ठीक है. कोई भी चीज PYQ और माइक्रो थीम से बाहर नहीं आती है. डायमेंशन थोड़े चेंज हो सकते हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट माइक्रो थीम्स डू नॉट चेंज. माइक्रो थीम्स कभी नई ऐड नहीं होती है, ठीक है. एक दो क्वेश्चंस अगर नए आते हैं तो वो माइक्रो थीम नहीं बनती है, बिकॉज दे आर नॉट रिपीटेड. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ एक्स फैक्टर नोट. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी का है, एक ही नोट से बहुत मल्टीपल डायमेंशन और मल्टीपल, एक नोट से आप किस तरीके से लिख सकते हो, बहुत सारे यूजेस कैसे आते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पॉवर्टी की ये एक मैंने आपको पिच पहले भी दिखाई थी. सोसाइटी में इसका यूज कैसे होगा, टू शो डेप्रिवेशन, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी. सोशल जस्टिस है, वेलफेयर स्कीम्स, रीच एंड लीकेज. इकोनॉमी हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ, इनफॉर्मेलिटी, GS4 एंड ऐसे, डिग्निटी, केपेबिलिटी एंड स्केर्सिटी. यहाँ से डेटा यूज किया जा सकता है. एक नोट्स है integrated into these things, all four paper. So do not say that कि silos में होता है. If you're building good notes, those same notes will actually be usable in multiple ways. This is X factor, similarly done. यहाँ से भी आप बना सकते हो. इसमें फैक्ट्स, डेटा और जो भी मैं आपको मैट्रिक्स बना रही हूँ, दैट इज देयर. ओके. लूप को क्लोज करना बहुत जरूरी है, ठीक है. विदाउट दैट इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. व्हाट इज अ लूप? अ मॉक इज अ करेक्शन ऑफ योर नोट्स. पहले आप बिल्ड करोगे ब्लॉक्स, देन आप टेस्ट करोगे, देन जहां पे भी गैप होगा उसको मॉडल आंसर से अपग्रेड करोगे. अगर आप देख रहे हो कि दीज क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटिंग, रिमूव दैट फ्रॉम योर नोट्स आल्सो. अगर आप टेस्ट नहीं दोगे, नोट्स आर नॉट गोइंग टू वर्क. एंड व्हाट डू यू डू विद द करंट अफेयर्स? लीव सम स्पेस इन योर नोट्स, और सिर्फ कीवर्ड्स और डेटा, कीवर्ड्स, बस यही ऐड करना है, ठीक है. डिलीट क्या करना है, ये कुछ भी नहीं रहेगा. दिस इज अ बिग नो. कोई भी पैराग्राफ आप कॉपी नहीं करोगे, जो पूछा नहीं गया है आज तक वो कभी कॉपी नहीं करोगे. अगर कोई भी नोट्स ऑलरेडी बनी हुई है तो सेकंड नोट्स कभी नहीं बनाओगे. कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हो जो कि वापस रिवाइज करने का टाइम लग रहा है, नहीं मिलेगा, उसको तो बिल्कुल हटा दो अपनी नोट से, उनको हटा देना है. फालतू की डेकोरेशन, फोर हाइलाइटर्स, कलर, एंजाइटी नहीं करोगे. इट सीम्स दैट परफेक्शन इज अटेन्ड not when there is nothing more to add, but when there is nothing more to take away. This should be the end note. आपकी नोट्स का यही होना चाहिए. It seems that perfection is attained, not when there is nothing more to add. If there is more to add, there is no perfection, but there is nothing to take away. This is it. आपको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए. 7 days हैं, ठीक है. आज से स्टार्ट करो 5 माइक्रो थीम्स. एवरी वीक डू 5 माइक्रो थीम्स. सिलेबस नहीं, माइक्रो थीम्स को उठाओ, डाउनलोड करो, फिर पिक 5 माइक्रो थीम्स अपने वीक के सब्जेक्ट से, PYQs निकालो,
write the angles, nahi questions nahi likhne hain, blocks banao. And then once you've done this for the first 3, do it for the next 2. Data, committee, vote. ठीक है? 15 minutes test. कैसे? 15 minutes कैसे टेस्ट करोगे? PYQ के 3 और आंसर लिखो. शीट से ही आंसर लिखना है. और अगर वो हो पा रहा है, that is means your note structure is good. You will only have time to write and test in the end, nothing else. Now I will talk about the shortcuts. I've already shown you. Flash notes available हैं. These are for prelims. Prelims के लिए है ये रेडी है एकदम, जिसे जो टेबल फॉर्मेट मैंने बताया. दिस इज फॉर बोथ प्री प्लस मेंस. और माइक्रो थीम इज फॉर योर entire analysis. This is your best friend. Download it today. So this is the final end of the session. I think I have said what I needed to say, that I've been saying it again and again. Sometimes simple works, okay? Sometimes you don't have to complicate the preparation. There are 5 fundamental things. First of all, do not go by the syllabus in abstract manner. Second is build a good note structure and keep going back and forth with your notes, adding good current affairs. All right. Third is revising at the right time, taking prelims and mains preparation together, giving mocks, and sitting with your paper. Okay, analyzing retrospectively and introspection is very important in this preparation. If you want to know more, you want to download it. This is the scan code that you can see. Scan this and you can download micro themes. You can download the X factors from there and all the important documents that are available freely. Annotated NCRTs are there. Super maps are for free. आप download कर सकते हो. Civil Daily is giving out to you. And if you want to talk to me specifically with related to this, ये number है 9266777821. You can call on this number and I will solve your doubt there and then. जो भी problems हो, preparation से related, note taking से related, micro theme से related, anything, just reach out to me on this number and we'll discuss in detail what can be done and what is the next step. Thank you so much for watching and all the very best. Happy studying. Thank you.